सब्सक्राइब करें। Welcome our esteemed guests, panels and distinguished guests on this panel. On this panel discussion of higher education bill, which is being drafted by Government of India. Let's look at certain facts on higher education institutions in India. As we all know, India currently has a population of 1.2 billion people in India, making it the second most populous nation in the world and also the most populous democracy. Over 50% of Indian population is under the age of 25. It is estimated that by 2030, around 140 million people will be in the higher education age group. At present, only 25% of higher education age group were enrolled in higher education in India in comparison to UK or France, where this percentage is up to 60%. Or even if you compare to Brazil, the percentage in 2009, there was 36% of higher education age group being actually enrolled in these institutions. So also, the other fact that we have to see is India has a relatively low inbound student rate, with approximately 20,000 people from abroad coming for admissions in Indian institutions in 2013. Whereas in the same year, you had up to 2 lakh Indian students going abroad to study in education institutions abroad. The higher education in India also produces one very troubling statistic. It is said that only 30% of graduates in India are actually employable, which is a sign of worry for Indian education system and something needs to be done to correct this. In light of these facts, here are the following questions I hope we can understand from our experts on the panel. First, what is problematic with Indian higher education system and how can we fix it? Second, as you all know, in 2011, UPA government introduced a bill on higher education, which was introduced by Sittalji as HRD Minister. So we have to explain what was the difference between the bill which was presented in UPA government and the current bill which is being proposed by Modi government. So we really need to explain and contrast the two so that the audience can actually understand the difference between the two. Third question, we need to what needs to change in the proposed bill and how do we remedy it? Next, how does this bill help in set up a higher quality educational system in India? In my understanding, this bill gives blanket power to the government to lay down learning objectives, to control appointments, as well as control finances to higher education institutes in India. Creation. Business communities don't create wealth. Entrepreneurs don't create wealth. They translate ideas into wealth. And the ideas are seeded in universities. Now, if ideas are seeded in universities, the underlying assumption in any education policy is autonomy. ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हायर एजुकेशन के साथ जिस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार करने जा रही है वो देश को मटिया मेट करने का रास्ता है। 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर हैं, वहीं से संचालन होता है, हजारों कॉलेज का संचालन होता है, उसको ख़त्म करके पूरा मिनिस्ट्री को देना कहाँ की समझदारी है। मिनिस्ट्री अपने ही मामलात को सुलझा नहीं पा रही है। ये जो मौजूदा जो प्रपोज बिल है जिसके तहत यूजीसी को ख़त्म करने का प्रावधान है, इसके द्वारा प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को करने का इरादा है और जो बन जाता है वो सरकार के कंट्रोल में रखा जाए। फंडिंग उन्होंने ले लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ले लिया है और जो कमिटी है, जो हायर एजुकेशन काउंसिल कमेटी है, उसका अगर आप मेंबर्स को अगर आप देखते हैं तो सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और जहां यूजीसी का कमेटी में 4 शिक्षक हुआ करते थे, यहां घट करके 2 हो गए हैं और इसमें एचआरडी सेक्रेटरी, स्किल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और ये सारे लोग ऐसे लोग रहेंगे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे, जो सरकार का भाषा बोलेंगे। आपको पता होगा ये जो मोदी सरकार है, ये नया ड्राफ्ट बिल ला रही है हायर एजुकेशन में।
वो इस बिल के ज़रिए से देश की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे सैफरनाइजेशन करना चाहती है। कहने का मतलब है आरएसएस का कब्जा करना चाहती है। देखिए, आपको इन लोगों की मानसिकता पता ही है, मोदी जी हो या ये सरकार हो, ये अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। मोदी जी का तो यहाँ तक है कि वो अपने मिनिस्टर्स तक की नहीं सुनते, और जो करते हैं वो करते हैं या आरएसएस करती है। तो ये आरएसएस का एजेंडा हमेशा से रहा है। जो बच्चे हमारे हैं, टेक्स्ट बुक चेंज करके उनको गलत चीज़ें पढ़ाई जाएं कि आगे जाके वो बीजेपी की सपोर्ट करें। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हुई हैं, वो टेक्स्ट बुक से छेड़छाड़ करनी उन्होंने शुरू कर दी है। वो बीजेपी वाले और हिंदू महासभा जो अंग्रेज़ों के साथ थे, वो ये बताते हैं टेक्स्ट बुक के ज़रिए अब कि वो कितने बड़े देशभक्त थे, जबकि सबको ये पता है वो देशद्रोही थे। तो यही हायर एजुकेशन में अब ये क्या करना चाहते हैं, जो अलग अलग हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हमारी इतनी 70 सालों में बनी हैं, जैसे IIT हो, IIM हो, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो और भी यूनिवर्सिटीज़ हो, हमने उनको ऑटोनॉमी दी। हमने ये कहा कि एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत आप जैसा चाहें लोगों को पढ़ा सकते हैं और आप अपने जो निर्णय हैं खुद ले सकते हैं। लेकिन ये सरकार क्या करना चाहती है, वो निर्णय ऊपर से थोपना चाहती है, और वो इसके ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि जो संघीय विचारधारा है वो देश में उसको और वो आगे बढ़ाए। तो ये हमें खतरा है इस बिल से। तो इसके उपलक्ष्य में हमने ये आज कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया था। AIPC, मैंने, मुदित अग्रवाल, AIPC जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस है, मिस्टर थरूर जी के अंडर बनी है, राहुल गांधी जी ने बनाई है, उसके साथ मिलकर, जिसमें हमने सिब्बल साहब को बुलाया। काफ़ी हमारे JNU के प्रोफेसर्स थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। उन सब ने इसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन की थी कि लोगों को अलग अलग चीज़ों के इसके जो पहलू हैं, नया जो बिल ये लाने वाले हैं, उसका पता चल सके। तो आपने शायद पता नहीं, ये पिछले 4 साल से यही तो कर रहे हैं। जब पहले वाजपेयी साहब आए थे उन्होंने ये किया, अब भी वो यही कर रहे हैं। यही तो वो इन एसोसिएशन में ऐसे आदमी बिठाना चाहते हैं जिससे आरएसएस की विचारधारा को आगे चलाएं। देखिए, आरएसएस की जो विचारधारा है वो हिंदुस्तानी विचारधारा हो ही नहीं सकती। वो जब हम आज़ादी मिली थी, जब से हिंदुस्तान ने जो रास्ता अपनाया है, आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल उससे उलट है। देखिए, पहले नॉलेज कमीशन बना था 2004 में, फिर यशपाल कमेटी बनी थी, उसके बाद यूपीए ने 2011 में, जैसे आपने सिब्बल साहब ने बताया, कि एक बिल लाए थे। वो बिल जो आज का बिल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस सबसे बड़ा फ़र्क ये है, उस बिल में जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी था, प्राइम मिनिस्टर भी था, स्पीकर भी था, लेकिन 3 आदमी वो थे जो एकेडमिया से थे। लेकिन आज जो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बनाया है उसमें 3 आदमी हैं जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे और सिर्फ 2 एकेडमिशियन हैं। तो आपको इससे पता चलता है कि ये क्या करने वाले हैं इसके अंदर। सब्सक्राइब करें।